Good afternoon, ma'am. Since most of you have joined, let's start the class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Switch on your cameras. Let's start the class. We'll try to make this class an interactive session. Okay, because the more you interact, the more you will learn, the more you counter your friends, the more you will, keep it remembered for a longer period of time than when you go and mug up it in your book. Since this is not exam, please do not hesitate. Do not have any qualms in objecting someone and giving your opinions and answering the question. गलत भी होगा तो कोई बात नहीं है, आपका मार्क क्यों नहीं हो रहा है. The rest of you, please switch on your cameras. Okay. So should we start from the very beginning, or do you want to pick point one topic and discuss it? Just tell me as you like it. Or if someone has a doubt, you can come up with your doubt first. Should we start from the beginning? थोड़ा थोड़ा revise करते चले जाते हैं. Will that be okay? See, HR or organizational behavior. Have you studied OB sometimes till third year? पढ़े OB थोड़ा बहुत? Yes, ma'am. HR और OB की खासियत ये होती है कि these two things they frame you up. When you understand the concepts of HR and organizational behavior, you actually start understanding कि कोई organization आपसे क्या expect करती है. Organization behavior का क्या मतलब होता है कि organization में एक employee का behavior both in as an individual and in groups क्या appropriate होना चाहिए, क्या होता है, उसको कैसे इंडिविजुअल बिहेवियर को ठीक किया जाता है, परसेप्शन का क्या वैल्यू है, लीडरशिप का क्या वैल्यू है, मोटिवेशन का क्या वैल्यू है. तो इन चीजों को, मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़े हो तुम लोग? Not yet, ma'am. Not yet. Abraham Maslow's need hierarchy theory you haven't read? ये तो मैम ये सब Yes, सेकंड ma'am. ईयर में पढ़े थे हम लोग, हायरार्की थ्योरी मास्लो वाला. फिर से बोलो मुस्कान. यस मैम, सेकंड ईयर में पढ़े थे मैम हम लोग. पढ़े थे ना, वही हम कह रहे हैं. अब तो तुम लोग खत्म करने पे आ गए, तो जो कोर्स होगा, बाकी जो पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे. Why do we talk about those motivation theories? Because human motivation is very, very, very important when you talk about it in terms of the organization. As a student अभी आपको ऐसे फील होता है कि अरे मोटिवेशन क्या होता है, हम लोगों को जहाँ पैसा मिलेगा वहां काम करेंगे, ठीक है, पैसा मिलना चाहिए बस. ये आप अभी एज अ स्टूडेंट सोचते हैं. 4-5-6 महीने ये साल भर जब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लोगे और सही से प्रोफेशनल लाइफ में आ जाओगे, then your satisfaction, your mental satisfaction and motivation will be two very important factors. कहीं का वर्क कल्चर अच्छा नहीं होगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, चाहे पैसा ज्यादा भी मिल रहा हो. अगर thoroughly motivated नहीं होगे अंदर से,
तो किसी काम का इनिशिएटिव लेने का मन नहीं करेगा. These things happen. तब तुम पलट के ये चीज सोचोगे कि my God, these were the theories, these were something that was researched and put in your books. Okay. कर्ट लेविन का मैनेजमेंट में एक स्टेटमेंट है. कर्ट लेविन इज अ he also gave HRD में पढ़ाएंगे अभी लेविन का बहुत सारा activities. Kurt Lewin has given a statement and he says that there is nothing more practical than a good theory. हम कहते हैं theory है, ये practical बातें नहीं है, but he has said and it is a wonderful statement. ये actual में होता है. जब तुम 4-5 साल काम कर लोगे तो तुमको अब्राहम मैस्लो की या फिर इवन कि तुम्हारा जब अभी जो लाइफ चल रहा है तो 3 साल के बाद तुमको ये लगेगा कि ये थ्योरी तुम्हारे अपनी रियल लाइफ पे बहुत एप्लीकेबल है. एंड सिंस दिस affects your individual behavior, that is why these things are important. इसीलिए organizational behavior और human resource ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप एग्जाम पास कर लो तो ठीक है, अदरवाइज तुम्हारी पर्सनालिटी को शेप अप करने में बहुत हेल्पफुल होता है. तुम अगर इसका पॉइंट्स लेके अपने इंटरव्यू का आंसर्स प्रिपेयर करते हो तो ये तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. जैसे HRD में पढ़ाएंगे तुमको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, शायद है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है. जैसे कि आर्मी की बात करोगे, आर्मी इफ यू टॉक अबाउट आर्मी दैट हैज अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑर्गेनाइजेशन होगी दैट हैज अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. ब्यूरोक्रेट्स का अलग ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है. एंड this will prepare your frame of mind for the kind of job. जैसे the other day हम तुमको करियर डेवलपमेंट के बारे में बता रहे थे लास्ट क्लास में. ओके, करियर डेवलपमेंट से आप बहुत सारे अपने इंटरव्यू के आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2-3 क्वेश्चंस बहुत पेटेंट होता है इन लोगों का. पहला, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ठीक है, ये इंट्रोड्यूस योरसेल्फ है. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप जो कॉन्वर्सेशन है उसको अपने हिसाब से किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ला सकते हैं. दूसरा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये दोनों चीजें. और एक क्वेश्चन, व्हाई शुड आई हायर यू, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है. और तीसरा क्वेश्चन लास्ट में जब आप इंटरव्यू खत्म कर लेंगे, देन दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन. तब आप करियर डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, इस तरीके की बातों को उसमें ला सकते हैं. and they'll make you act like you already know a lot about the work culture which is there in the market, even if you are fresh and graduate, क्योंकि तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाला भी ये जान रहा है कि तुमको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है. Okay, so take these subjects, understand the concept of these subjects with the seriousness of not just passing your exam but for shaping up your personality and frame of mind also. Okay, let's start. So is there, I am again asking you, is there something that you want to discuss in particular or should we revise from the beginning? मैम रिवाइज करवा दीजिएगा. मैम रिवाइज थोड़ा सा. ठीक है, पर उसके लिए आप लोग कैमरा ऑन कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए, वरना ये तो फिर से लेक्चर जैसा हो जाएगा जो लास्ट क्लासेस में. तो उसके लिए फिर एक अलग से क्लास रखने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना. आप YouTube पे जाकर के देख सकते हैं वो लेक्चर्स को. जस्ट मेक दिस क्लास इंटरैक्टिव. गलत होगा तो कोई बात नहीं, जस्ट गो बैक एंड रीड. बाकी लोग रिमूव कर दें आप लोगों को जिनका कैमरा ऑन नहीं है. मैम क्लास अभी हो रहा था तो उसमें नेट मैम बचा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है. राजेश, यस मैम. ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी. ओके, कल्पना, वेयर इज कल्पना? कल्पना, unmute yourself, switch on your video. You have to work really hard, कल्पना. ऐसे नहीं चलेगा कि क्लास में तुम्हारा परफॉर्मेंस मार्किंग में अच्छा नहीं था, बट यू नीड टू वर्क हार्ड. बहुत बेसिक क्वेश्चंस तुमसे पूछे बट यू कुडंट आंसर इट. थोड़ा हार्ड वर्क करना होगा. वैसे वैसे काम नहीं चलेगा, ऐसे यूनिवर्सिटी में भी मुश्किल हो जाएगी.
Let's start. This chapter is about career planning and development. आपके मॉड्यूल में जो चैप्टर है, this is about career planning and development. Let's start with it. What is career? Who will answer? Anisha will answer. I'll ask a question. You raise your hand. Fine. जिसको जिसको आंसर करना है, जैसे जैसे किसी तुम्हारे किसी फ्रेंड ने कुछ बोला है, you want to add something or you want to counteract your friend, that is okay. बताइए, what is career? हाँ मुस्कान बोलो। मैम करियर एक सीक्वेंस है जो सीक्वेंस है वर्क रिलेटेड से, जो एक पर्सन को एक वे और मतलब एक पाथ प्रोवाइड करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने लाइफ में सक्सेस अचीव कर सके। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हम कर देते हैं। करियर इज अ सीक्वेंस, जो तुमने बोला कि वो सीक्वेंस है। जैसे तुम 10 साल काम कर लोगी तो फिर तुम when you look retrospectively you will say that I have a career of 10 years. What does this statement mean? You had a career of 10 years. This means कि you have, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमने एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल काम किया होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है 2 साल, फिर 2 साल स्विच किया होगा, बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं मिली होगी, फिर कहीं और गए होगे। लाइक दैट career means a sequence of separate, you know, those activities were separate but related work activities, which provide continuity to you. एक continuity provide करता है and adds some meaning to your life, right? It adds some meaning to your life. जैसे हम generally career में related job activities को डालते हैं, understood? चलो नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ करियर? आशीष टेल मी। Ma'am, exploration, establishment period, mid career and late career. And there's one more. Late career. उसके बाद एक है डिक्लाइन है, ठीक है, इसके बाद डिक्लाइन है। ये 5 स्टेज है करियर का। आपको जब भी करियर प्लानिंग वगैरह आएगा लिखने, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स थोड़ा लंबा लिखना होता है, पेपर फिलिंग इट इज आल्सो अबाउट पेपर फिलिंग, तो आप ये स्टेजेस भी लिख सकते हैं अगर आपको याद रहेगा तो। दिस वाज नॉट देयर इन योर मॉड्यूल बट आई डिसाइडेड टू टेल यू द सेम। एंड आशीष हैज डन गुड इन मार्क यू। आई आस्क्ड हिम सम गुड क्वेश्चंस एंड ही वाज एबल टू आंसर इट बैक। चलो, तो फिर करियर का ये सारा फेज है। द फर्स्ट पीरियड इज, द फर्स्ट स्टेज ऑफ करियर वाज एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करने वाला पीरियड है, ठीक है। जनरली मिड 20s तक इसको बोला जाता है। जैसे आप लोग एक्सप्लोरेशन पीरियड में हैं, यू आर ऑल इन एक्सप्लोरेशन पीरियड। एक्सप्लोर करने का मतलब आप प्री एम्प्लॉयमेंट पीरियड है आपका, ठीक है। बिफोर एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्री एम्प्लॉयमेंट पीरियड है। इस टाइम पे आप बहुत लोग जगह से नॉलेज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर रिलेटिव, एवरीवन, ठीक है। तो ये पीरियड कब एंड होता है? तब एंड होता है जब आप कहीं पे ज्वाइन कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट पीरियड। 10 साल का लगभग लमसम इस पीरियड को बोला जाता है। 10 साल है, 25 to 35 इज द एस्टैब्लिशमेंट पीरियड। एज द नेम सेज, एस्टैब्लिशमेंट पीरियड का मतलब होता है यू आर एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप जूनियर होते हैं, यू आर स्टिल गेटिंग, यू आर स्टिल लर्निंग, यू आर स्टिल मेकिंग मिस्टेक्स, you're still being guided by your mentors at the workplace, okay। और ये establishment का जो stage है ये सिर्फ organization में नहीं होता है, ये आपके घर में भी होता है, ये आपकी society में भी होता है। So, नेहा कुमारी, is she from your class? नेहा? Yes? No ma'am. No, ma'am. Fine. So establishment period का मतलब क्या होता है कि you're just establishing yourself not just in the organization but you're trying to establish yourself in the family also. You're trying to prove a point to your relatives, your families, that I am establishing myself in the society, ठीक है।
एस्टैब्लिशमेंट जैसा नाम सजेस्ट करता है वैसे ही। मिड लाइफ करियर, ओके। अच्छा, वन थिंग एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो एक्सप्लोरेशन पीरियड में था, ये हम बार बार डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्सप्लोरेशन पीरियड में आपकी बहुत सारी कुछ ऐसी ख्वाहिश होती है जो आप करना चाहते हैं पर आप कर नहीं पाते हैं। The exams that we discussed in the last class, it was the civil services exams. आप लोगों में से बहुत लोगों को civil services देने का मन होगा, लेकिन अभी due to some restrictions या psychological restriction या syllabus बहुत ज्यादा है या अभी job करने का मन होगा, ये सब करके आप 2 साल काम करेंगे, 3 साल 4 साल काम करेंगे and then you will generally civil services prepare करने वालों को यही होता है कि then पैसा भी ज्यादा मिल रहा होता है, still the sense of contentment is not there. The sense of the fact that you're not doing any value addition to your own self, you're just earning money, that's it. Okay, वो जो अब ये इसमें भी मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है कि आपने एक बार पैसा कलेक्ट कर लिया, पैसा हो गया आपके पास, अच्छा स्टेबल हो गए आप, and now your need has moved to the next hierarchy. इस चीज को हम उसी थ्योरी के हिसाब से समझा सकते हैं। पूरा आपका मेरा ह्यूमन रिलेशन का जितना भी बिहेवियर है, सबको आप किसी न किसी एस्टैब्लिश्ड थ्योरी से प्रूव कर सकते हैं। हो गया? तो अगर एक्सप्लोरेशन पीरियड में आप में से किसी की ऐसी चाहत है कि आप ऐसा करेंगे, आप में से किसी को ऐसा मन करता है कि नहीं हम फ्यूचर में जाके हम कमा लेंगे पैसा और उसके बाद हम योगा इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे, आई विल गो टू, अब क्योंकि ये सब ट्रेंड हो रहा है अभी के टाइम पे, ओके, कि आई विल टेक अ फुल फ्लेजेड क्लास एंड देन आई विल बिकम एन इंस्ट्रक्टर एंड ऑल दैट। तो ऐसा लोग कर रहे हैं 10-12 साल 15 साल 20 साल का करियर, कॉर्पोरेट का करियर लेके, एंड देन दे एंड अप एंड दे स्टार्ट डूइंग अदर थिंग्स, जैसे ट्रैवल ब्लॉगिंग। ठीक है, ट्रैवल ब्लॉगिंग ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, राइट? तो ये सारी चीजें जो है अर्निंग मनी, जैसे ट्रिपोटो वगैरह पे भी अब आप देखिएगा कि ट्रैवल ब्लॉग्स विल अर्न यू मनी, तो ये सारी चीजें भी लोग ऑप्ट करते हैं। कुछ चाहत होती है जो आप शुरू में, क्योंकि आपका अभी नीड है, अभी आपको जोश है जॉब करने का, बाद में मे बी इफ यू रिजाइन टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, देन दिस विल बी a reflection of what you thought of in the exploration period. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सप्लोरेशन पीरियड स्टूडेंट्स का इस वजह से भी इंपॉर्टेंट होता है। एस्टैब्लिशमेंट वी डिस्कस्ड, देन वी मूव ऑन टू मिड लाइफ। मिड लाइफ का मतलब यही 35 से लेकर के 45 तक लगभग बीच का जो लाइफ है वो, कैन यू गेट माय वॉइस, इज इट ओके? यस मैम। 35 से 45 तक का जो एज होता है दैट इज मिड लाइफ। इस मिड लाइफ में होता ये है कि some of you have fairly established yourself, some are still establishing themselves, and some are not able to establish, neither they are able to establish nor do they have any scope for further establishment. यानी वो कह सकते हैं आप कि एक तरीके से they move towards the decline period. Okay, now midlife is not just important from organization, from your career point of view. midlife को HR में पढ़ाया इसलिए जाता है क्योंकि ये midlife आपके पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड यू ऑल नो दिस एट दिस स्टेज, क्योंकि आपकी फैमिली नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से समझ नहीं पाएंगे। आप बस ये बोलिए कि अगर ये समझिए कि अगर आपके घर में कोई नहीं है टू टेक केयर ऑफ योर मदर, और आपकी माँ बीमार है और आपको ऑर्गेनाइजेशन में छुट्टी नहीं मिल रही है, एंड योर मदर इज देयर एट होम अलोन, यू आर द सोल केयर टेकर ऑफ योर मदर, तो क्या आप डिस्टर्ब नहीं रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में? यस मैम, डिस्टर्ब होंगे। आप डिस्टर्ब होंगे, आप स्ट्रेस्ड होंगे। इसी तरीके से यू विल हैव दिस फीलिंग व्हेन यू हैव योर स्पाउस इन द फॉर्म ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ, व्हेन यू हैव अ चाइल्ड। तो क्योंकि मिड लाइफ 35 to 45 का पीरियड बताया जाता है, इसलिए मोस्टली इस टाइम तक शादी हो चुकी होती है और बच्चे हो चुके होते हैं। सो यू आर इन बिटवीन, यानी दैट एस्टैब्लिश्ड पर्सनली। तो फैमिली की जिम्मेदारी भी, और बच्चे छोटे होते हैं, इसलिए फैमिली की जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा होती है। नाउ इन दिस पीरियड
any stress in your personal life will also have an implication on your work life, right? तो इसमें 3-4 चीजें पढ़ाई जाती हैं स्ट्रेस में, इतना डिटेल्स तुमको नहीं जानना है, लेकिन हम बस नाम के लिए बता देते हैं। जैसे इस टाइम पे मोबिलिटी एक प्रॉब्लम हो जाता है, हस्बैंड वाइफ जब दोनों काम करते हैं तो उसको डुअल कपल करियर बोला जाता है, वो एक प्रॉब्लम होता है। और पर्सनल प्रॉब्लम्स इस टाइम पे अगर होती है, जैसे कि योर हेल्थ, जैसे कि अ बैड मैरिज, जैसे कि फैमिली इश्यूज, डिवोर्स, इस तरीके के मैटर को दे लीड टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस व्हिच यू आल्सो ब्रिंग अलोंग टू द वर्क प्लेस। इसीलिए इस एज को मिड लाइफ क्राइसिस भी is also a phenomenon in this time, in this period. इसके बाद का फेज क्या आता है? इसके बाद का फेज आता है लेट करियर। लेट करियर माने जनरली आफ्टर 40s। देखो, लेट करियर में आफ्टर 40s इज फाइन, लेकिन अगर आप देखेंगे जितने की पोजीशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सीईओ, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, जैसे कहीं का सीनियर मैनेजर, कहीं की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कहीं का डायरेक्टर, ये सारे लोग लमसम तुमको इसी एज में मिलेंगे ना? Yes, ma'am. This also proves कि सबका लेट करियर खराब नहीं होता है, यानी खराब इन द सेंस कि सबका लेट करियर मीडियोकर नहीं होता है। Those who have worked really hard in their 20s, in their 30s, they have a wonderful time in their 40s. ये फैक्ट है। मान लो तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, तुम लोग अभी हम ये 3rd ईयर में हो ग्रेजुएशन के, तो हम लमसम इमेजिन कर सकते हैं 20+-1, ठीक है? एवरेज तुम्हारा एज ऐसा होगा, एवरेज आई एम सेइंग। किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, कुछ लोगों ने ज्यादा साल ड्रॉप भी किया होगा तो ज्यादा भी हो सकता है। 21+-1 और 2 लिखो, बहुत छोटी एज होती है ये। इस टाइम से तुम अगर करियर बनाना शुरू करोगे, for you to reach 30s you still have 10 years or 8 years. 8 years is a long time when you are talking about building career. Then again 30 to 40s is again 10 years. So 18 years you will have worked. बीच में higher education लो, training लो, development करो, जो भी करो, लेकिन that will be still counted in your career. So for 17-18 years if you have had a career which is nice, you have taken, अब मान लो कि तुम 25-26 साल तक की कोई ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को होल्ड कर रहे हो, होता है ना? इफ यू आर टेकिंग सम टफ एक्शंस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोई टफ रोल में हो तुम, जो कि इजी नहीं है, तुम्हारे स्किल या तुम्हारे एप्टीट्यूड की वजह से तुमको वो रोल प्रोवाइड किया गया है, ऑब्वियसली तुम बाकी अपने जो तुम्हारा पेयर ग्रुप है उससे तो तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। उसके बाद उस चीज को हैंडल करने के बाद you will be more confident, you will prove yourself to be more skilled, that will add to your CV, and by the time you go to 40s you have already had a wonderful career, right? यही डिफरेंस होता है कम एज से अच्छा कुछ करने का और लेट एज में थोड़ा स्टार्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल, जो लड़के लड़कियां 23-24 साल तक IAS बन जाते हैं, they have more chances of becoming cabinet secretary than, क्योंकि उनका करियर पीरियड लंबा होता है, वो प्रमोट होते होते वहां पहुंचते हैं, बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किए, इस डिपार्टमेंट में किए, उस डिपार्टमेंट में किए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाले। सो बाय द टाइम 45-50 they have more chances of becoming cabinet secretary than those people जो कि 29, 30, 32 में IAS बनते हैं, राइट? समझ में आई ये बात? इसीलिए Yes, ma'am. लेट करियर इज ऑफन वंडरफुल फॉर दोज पीपल who have worked harder in their 20s and 30s. ओके? और लेट करियर ऐसे जनरली स्पीकिंग, लेट करियर क्या होगा? लेट करियर मतलब अब नाउ you have to, there are 2 types of people. तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे ही क्लास में एग्जाम्पल लेके तुमको बताए थे कि 2 चीजें होंगी। अभी एग्जाम अगर तुम लोग दे रहे हो और एग्जाम कैंसिल हो जाए तो जो मीडियोकर्स हैं वो लोग खुश हो जाएंगे, उनको लगेगा एवरेज मार्किंग हो जाए, एग्जाम नहीं देना हो, पढ़ना ना पड़े, पढ़ के शायद और कम ही नंबर आता जो एवरेज मार्किंग में मिल रहा है।
और जो पढ़ने में बहुत तेज है उनको ऐसा लगेगा कि अरे क्यों कैंसिल हो गया, हम लोग तो पढ़ते, हम लोग मेहनत करते, बिकॉज दे आर फॉन्ड ऑफ वर्किंग हार्ड। तो उनको ये चीज मलाल रहेगी कि क्यों एग्जाम कैंसिल हो गया, हम ज्यादा स्कोर करते, एवरेज कर दिया, मार्क्स कम हो गया। ठीक है। इसी तरीके से जब लेट करियर की हम बात करते हैं, लेट करियर में होता ये कि दोनों टाइप के एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। One who has always handled high position roles and responsibilities, बहुत काम किया है, बहुत एक्सपीरियंस, नॉलेज, विजडम गेन किया है, कुछ बहुत की पोजीशंस को हैंडल किया है, वैसे लोग। और वैसे लोग भी हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में सिंपली काम किया है, बहुत एम्बिशियस नहीं थे, तो उनका करियर ग्रोथ बहुत नहीं है। तो डिक्लाइन पीरियड में जब ये लोग आते हैं, तब जो फॉर्मल ग्रुप होता है, यानी द वन हु हैज ऑलवेज handled the key positions, they are sort of not very happy, you know, उनको थोड़ा टफ टाइम होता है, उनको ऐसे लगता है कि काइंड ऑफ यू नो there is an identity which is being snatched away from them, right? अब तुम सोचो कि 5 साल तुम अगर सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगी, मैनेजर बन गए, तो तुम्हारी आइडेंटिटी ऐसी हो जाएगी कि मुस्कान इज मैनेजर इन फ्लिपकार्ट, यही तुम्हारा सोशल आइडेंटिटी बन जाएगा। ओके, 5 साल काम कर ले। जस्ट इमेजिन समबडी हु हैज वर्कड फॉर 20 years in an organization, ठीक है, 25 years in an organization, उसकी तो एक तरीके से your work is not just about money, that is also your personality, that gets embedded in your personality, that is there in your you know, in your personality, and that becomes very much a part of your identity. तो उनको थोड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस टाइप का फील होता है। और जो लोग बहुत मीडियोकर्स टाइप के थे थ्रू आउट देयर लाइफ, तो जो मीडियोकर्स होते हैं वो खुश थोड़ी होते हैं। मीडियोकर्स की साइकोलॉजी कैसी होती है? द मीडियोकर्स दे नो दैट दे कैन नॉट डू रियली गुड, वो चॉइस से मीडियोकर नहीं होते हैं। ओके, they know it for sure कि they even if they try they are not that competent। तो frustration तो होता है mediocre होने में, everyone wants to top the exam, लेकिन क्योंकि आपको ये भी पता है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो अगर कुछ एग्जाम खत्म हो रहा है, एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, तो आप खुश हो जाएंगे, you'll be happy कि तुम्हारा now finally your frustration is going to come to an end, right? And in a very dignified way you will retire from the organization। और यही चीज जो लोग बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, की पोजीशंस होल्ड करते हैं, they feel like a little bit of identity crisis की रिटायरमेंट हो रही है, and then they have to be at home and all of that। Okay, next, what is next? Tell me, is there anything you want to ask? Let's come to career planning now। मैम डिक्लाइन करियर, फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। डिक्लाइन फेज, डिक्लाइन फेज, डिक्लाइन फेज बताया तो अभी। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? अंत होना किसी चीज का। सो द डिक्लाइन फेज इज जनरली मार्क्ड बाय रिटायरमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, one who have always held key positions in the organization, they are not very happy about the decline phase because they feel that a sense of, you know, identity, they're losing a part of their identity in the form of the work, while the others who were mediocres throughout the organization, throughout their stay in the organization, they are very happy that their frustration is going to be put to an end। That's it। इसके अलावा बताइए। करियर प्लानिंग क्या होता है? It is the process by which an individual sets his goal and lay down the path to achieve his goal. It also gives continuity to the professional life। ठीक है, अब इसका मतलब भी समझाओ। मैम, करियर प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपना गोल सेट करता है कि उसको क्या करना है और फिर उसके बाद उस पाथ पे चलता है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब कि करियर प्लानिंग विल गिव एन आंसर टू योर क्वेश्चन कि वेयर विल आई बी 5 years डाउन द लाइन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए भी आपको करियर प्लानिंग की जानकारी होनी जरूरी है। करियर प्लानिंग नाम की कोई चीज होती है। So career planning is definitely a goal which is set. These are the goals which are set and you lay down the path to achieve that goal. इसका मतलब अगर आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि where will I be in the organization 5 years down the line or 10 years down the line, you can get an answer to it. This is known as career planning. And what is the need of career planning? क्यों career planning की जरूरत होती है? पहले ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। और टू अट्रैक्ट द कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, क्योंकि अगर करियर प्लानिंग होगा ही नहीं तो कोई भी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन ही नहीं करना चाहेगा। ठीक है, गोल्स भी होगा मैम, टारगेट गोल्स। गोल्स क्या बताए तो फिर से बताओ, और लोग बताइए। मैम टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। ठीक है, टू एन एक्सटेंट टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, ये वेद ने बोला, राइट? कैन यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट वेद? हाउ? We don't incentivize the efforts made by the employees. Chances are, and if the work culture is also not good and many factors are not as convincing for someone, they may leave the job, and many employees may leave the job at a particular period of time. Searching for good opportunities, right? ठीक है, करियर प्लानिंग का ये सब है, पढ़ लेना उसको। और ये बहुत कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। दिस इज नॉट एन इवेंट। करियर प्लानिंग ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर दिया एंड देन दैट्स ओवर। करियर प्लानिंग इज नॉट एन इवेंट। व्हाट इज सक्सेशन प्लानिंग? सक्सेशन प्लानिंग आप लोग लिखे हैं कि नहीं लिखे? नहीं लिखे? थोड़ा सा लिखिए सक्सेशन प्लानिंग के बारे में, आपके मॉड्यूल में भी है। ऑल्दो आई थिंक आई रिमेम्बर दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। याद है ये? थोड़ा सा डिस्कस करो पहले सक्सेशन प्लानिंग, उसके बाद लिखना, तब समझ में आएगा क्या होता है सक्सेशन प्लानिंग। To identify the critical problem in the organization. Not critical problems, Vineet. Vineet said this. Yes, Key ma'am. position. No, Vineet, not critical problems. Succession, successor. I think Yuvraj, I remember by his name. Yuvraj said it in the last class. Successor मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी, है ना? उसी से ये नाम डिराइव हुआ है सक्सेशन प्लानिंग। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ की पोजीशंस होते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑन द होल को इम्पैक्ट करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वैसे की पोजीशंस पे सिर्फ कॉम्पिटेंट लोग ही आएंगे, तभी उस की पोजीशन का जो क्रेडिबिलिटी है वो रहेगा। सो फॉर दैट the organization needs to identify those people in the organization and develop those people. मान लो मैंने ये सोचा कि वंदना is a girl who is good, कि वो CEO का पोस्ट ले सकती है, इसने 15-20 साल काम किया है, एंड देन आई थिंक दैट मैं ऑर्गेनाइजेशन के हेड में हूँ, एंड देन आई फील दैट ओके वंदना इज वन पर्सन हु कैन टेक द पोजीशन ऑफ CEO, बट एट प्रेजेंट शी इज नॉट दैट रेडी टू टेक अप दैट पोजीशन. Maybe she needs a little more training, more grooming, more development on part of her behavior. Then मैंने identify कर लिया कि वंदना can be that girl suitable for CEO, लेकिन अभी वो सूटेबल नहीं है क्योंकि उसको थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको और डेवलप किए जाने की जरूरत है. ओके, उसके बिहेवियर में फर्दर होनिंग बाकी है. बट आई विल आइडेंटिफाई वंदना एंड आई विल keep her in mind and I will work towards making her more and more suitable for filling up the position of CEO in case the need arises in future. समझ में आई बात? अब देखो, Yes, ma'am. करियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग के बीच में डिफरेंस होता है. ये दोनों सेम वर्ड नहीं है, इसको कंफ्यूज मत करना. करियर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर के लिए किया जाता है. वो क्लर्क होगा तो क्लर्क के लिए भी होगा, एक अनस्किल्ड लेबर होगा तो अनस्किल्ड लेबर के लिए भी आप करियर प्लानिंग करेंगे.
लेकिन सक्सेशन प्लानिंग इज नॉट फॉर द लोअर लेवल, सक्सेशन प्लानिंग इज ऑलवेज फॉर हायर लेवल, जो की पोजीशंस होता है उसी के लिए सक्सेशन प्लानिंग किया जाता है। ओके क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल, ये बहुत ज्यादा उसके टॉप ब्रेन्स पे डेवलप करता है, बिकॉज आफ्टर ऑल दीज आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कॉन्सेप्चुअल प्लानिंग एंड एवरीथिंग एंड कम्युनिकेटिंग इट डाउन द हायरार्की। वो वहां से देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल को किस तरीके के पॉलिसी, प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल्स की जरूरत है। ओके, write down few lines about succession planning. Write down. A succession planning means to fill key positions over time A succession planning means filling key positions over time which is essential for survival and success of an organization. Which is essential for the success of an organization, which is essential for the survival and success of an organization. The purpose of succession planning is to essential for the survival and success of an organization. The purpose of succession planning is to identify and develop people to replace current incumbents, to identify and develop people to replace current incumbents, INCUMBENTS, incumbents in key positions in case of ये बताइए किस किस पोजीशन में वो की पोजीशन खाली हो सकती है, क्या क्या कंडीशंस हो सकता है? अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर कर गया तो रिटायरमेंट एक पॉइंट आकांक्षा ने बताया। क्या मैम कह रही अगर किसी और कोई मेडिकल लीव ले लिया, डेथ हो गया, डेथ हो गया, डेथ एक्सीडेंटल डेथ, ठीक है। या कुछ मुस्कान बड़ा was saying कांड। something? बड़ा कांड, मैम ठीक। लूनेसी भी हो सकता है। बोलो लूनेसी लूनेसी, व्हाट इज दैट? मैम आई मीन मैनेजमेंट में पढ़े थे कि कोई अगर पार्टनर लूनेसी हो गया या आई मीन पागल या अच्छा mentally अच्छा, disturbed हो दैट गया। lunatic Yes, you want to ma'am. say? ओके, Yes, ma'am. lunatic अगर हो जाता है तो ठीक है। उसके अलावा मैम रिजाइन खाली कर दे पद तो हो सकता है। बिल्कुल, तो ठीक है, आप समझ गए। रिटायरमेंट है, रेजिग्नेशन है, डेथ है, उसका भी उसी का प्रमोशन हो गया, वो उससे भी हाई पोस्ट पे चला गया, ठीक है, या सिंपली इन केस ऑफ ग्रोथ। लिखिए। मैम तो कोई लीव ले लेगा तो नहीं, वजह से मेडिकल लीव 1-2 मंथ के लिए ले नहीं, लिया तो लीव फिर- लेने के बाद जो बनाया जाता है वो इंटरिम बनाया जाता है, टेम्पररी बेसिस पे। लीव के बाद तो वापस आएगा ना। पोजीशन खाली करने का मतलब पोजीशन खाली करना। चलो लिखो, इन की पोजीशंस इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, promotion, growth, etc. Succession can be from within the organization or outside.
क्या बोले? Succession can be from within the organization or outside. मैम आउटसाइड का मतलब किसी को भी बाहर से लाकर बड़े पोजीशन पे रख देगा? जैसे HDFC का CEO है, ठीक है, उसके बाद उसको उससे ICICI में किसी हायर पोजीशन पे सीट खाली है, तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। अगर उसने HDFC में वैसा काम किया है तो उसको ऑफर किया जाएगा, इफ ही वांट्स टू कम ही कैन जॉइन। ऐसा तो होता ही है, ठीक है। मैम ये लाइन रिपीट किया ना, एक बार छूट गया मैम। Succession can be from within the organization or outside, यानी अंदर के लोग फिल कर सकते हैं या बाहर के लोग भी फिल कर सकते हैं। एक डिफरेंस लिख लो। The difference between career planning and succession planning is that the difference between career planning and succession planning is that the former covers all the levels of employees. The former covers all the levels of employees, while the latter is done for high-level executives. Ma'am, please repeat again. Career planning, the difference between career planning and succession planning आप लिख रहे हैं, तो लिखो career planning is for all the levels of employees, while succession planning is only for high-level executives. Is only for high-level executives. Okay? Done? Yes, ma'am. So you understood this chapter. Is there any other topic that you want to discuss? Tell me. The last topic that we discussed was career development. Go through your copy, and I'm repeatedly telling you, I'm giving you few things in writing just for the reference point of view. I will still appreciate if you make your own notes, because अपना notes बनाना अपनी understanding के लिए सबसे अच्छा होता है. Hello. If you have understood this, then see you in the next class. And in the next class, we are going to start another chapter, which is organizational development. That is a good, important chapter. Okay, further adding to your knowledge of HR, क्योंकि HRD बहुत अच्छी चीज है, जो नई चीज है, जो thankfully PPU के syllabus में add किया हुआ है. तो do come up with little preparation. Okay? ये chapter समझ में आया ना? Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. OD भी आएगा. And the next chapter we will proceed थोड़ा gradually. धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, क्योंकि वो उसका concept समझाते हुए तब आगे बढ़ेंगे. Fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am.